The Utkarsh Parashar Show, Indian Student Life in Canada with Mayank Arora. So hello and welcome to the Utkarsh Parashar Show. Today we have a special guest named Mayank Arora. Just to give you a brief introduction of Mayank, he's an international student studying in Canada at York University for a postgraduate certificate in digital and content marketing. He also creates content, posting videos on Canadian lifestyle on YouTube and Instagram as well. One of his reels recently passed the 5 million views milestone. So thank you so much, Mayank, for accepting my invitation and coming up on the show. It's a huge honor for me to interact with you today. Thank you so much, Utkarsh. So as you told all the viewers about my name, so my name is Mayank Arora. And I am from Bhadugarh. It's a small town in Haryana, and it's basically on the outskirts of Delhi. So like I was born and brought up there. I did my schooling from St. Thomas School, and after my schooling I did my bachelor's. I pursued it from Vivekananda Institute of Professional Studies. It's in Delhi, and that was in journalism and mass communication. So then after that I did job for like 4 to 6 months in a digital marketing agency. I worked as an executive digitech there. So like while I was working, like I was really tired about that thing that I am doing, like all the monotonous thing, like working from 9 to 5. So talking about my brother here, he is in US. He did his masters from University of Utah, and now he's working as an applied data scientist in Amazon. So what happened as he was like visiting us in December 2019, I think. So I was like really upset. So he started talking about my journey, about my life, like what do you want to do and all those things. So I was really upset. I was not giving like the answers in that mood. So he told me that why are you not trying for like to study abroad? And then like I was also like, yes, I can go for it and I can do that thing. So I think that was the day and that was the moment that it clicked me that I should also like go for the further studies at abroad. So the day like I decided that I will give my IELTS. So then I started preparing for my IELTS exam, and then after that COVID happened in 2020. So basically in 2020 March I gave my IELTS. I passed it with a higher grade. So I was eligible to go for the visa process. And then in the middle I was working for my loan. So like I was telling all those things to my brother, like he went back to US for his work and everything. So I was like in touch with him. So like slowly like IELTS, I gave IELTS, then the loan happened, and then the visa process, biometrics, everything. And then and the most important part, like for the first course, I did it from the Georgian College. That was postgraduate certificate in project management. So Georgian College is in Barrie, and Barrie is near to Toronto. It's like 45 or 1 hour drive from Toronto. And for the second course, as you told everyone, I am pursuing it from York University, and that is a postgraduate certificate in digital and content marketing. So this is my whole journey, like talking about my school, college, how I came here, about the process, and now what I am doing, and talking about my last thing, that is the part-time job. I am working as a marketing coordinator, digital marketing coordinator in a real estate agency, Century 21 Green Realty. So I work part-time there. I go to my university, like studying in the same field, so that it really helps. So this is my whole journey, and I'm really very exciting about this whole podcast and like the show you have invited me. So thank you so much. Okay, so let's talk about the struggle in Canada. Go ahead. So आपने क्या स्ट्रगल फेस किया, और there is a myth in India, so बहुत ज़्यादा struggle है Canada में. So what do you think? Like to answer this question, कि जब भी like कोई भी बंदा prepare when he or she like they prepare for the abroad studies or when they move out of their family, obviously तुम अपना comfort zone छोड़ रहे हो, और जहाँ पे भी तुम जब अपना comfort zone छोड़ोगे तो तुम्हें struggle तो करना पड़ेगा. और struggle का यहाँ पे मैं कहूँगा कि let's do one thing from today. Let's replace this word with hard work और hustle. Struggle ऐसा हो चुका है कि बहुत ज्यादा कि जो भी बंदा है वो पहले ही डर जाता है कि यार पता नहीं वहां जाके क्या होगा. ऑब्वियसली मतलब इसको हम मिथ नहीं कह सकते कि स्ट्रगल नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है. हार्ड वर्क तुम्हें करना ही पड़ेगा बिकॉज तुम्हारी फैमिली यहाँ पे नहीं है,
नाउ यू विल बी इंडिपेंडेंट। और ऐसे कितने लोग होते हैं जो एयरपोर्ट पे यहाँ पे आते हैं, उनको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, उनको लाइफ कहाँ लेके जाएगी, कैसे करना है, क्या करना है। अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर तुम्हें अपने मंथली एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं तो तुम्हें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ हियर, तो जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, मैं यहाँ पे आया था लास्ट ईयर अगस्त में। आई थिंक 10th August was my landing day here, yes. And then I started working as a server in a restaurant. तो अब तुम यहीं पे देख लो कि इंडिया में मैं अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में गया था, बट जो मेरी फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे थी, मैं सर्व कर रहा था लोगों को, तो कितना ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। अब मैं इसको सोचता रोज बैठ के कि स्ट्रगल हो रहा है, तो शायद मैं वो नहीं कर पाता। और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कोई यहाँ पे हर चीज की डिग्निटी है, हर बंदा रिस्पेक्ट करता है हर किसी की, और यहाँ पे सब स्टूडेंट्स ऐसी जॉब कर रहे हैं। तो मैं भी वो हार्ड वर्क करता गया, धीरे धीरे मैंने जॉब चेंज करी, और फिर मुझे एक अच्छी जॉब भी मिल गई है अब। तो इट ऑल डिपेंड्स कि तुम बस लगे रहो, अच्छे लोगों से बात करो, पॉजिटिव एनर्जी में रहो, और स्ट्रगल अगर सोचोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बस ये कि तुम्हें ये सोचना है कि यार जितना मैं इंडिया में हार्ड वर्क कर रहा था, अपनी होम कंट्री में हार्ड वर्क कर रहा था, उससे मेरे को into 3 into 4 यहाँ पे हार्ड वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पे तुम ही हो बस जो तुम्हारे डिसीजंस लोगे, तुम ही हो बस जो हर चीज तुम्हारे बारे में सोचोगे। बिकॉज यहाँ पे ऐसे किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं होता दूसरे के लिए, क्योंकि वो पहले ही अपनी लाइफ में बिजी है। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, डेफिनेटली इट्स वर्थ इट। और तुम्हें जो भी तुम हार्ड वर्क करोगे तुम्हें उसका रिटर्न मिलेगा फॉर श्योर। मतलब कनाडा अल्टीमेटली आपको सेल्फ रिलायंट और सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। यस एब्सोल्युटली। लाइक जिस दिन जो दिन होता है, जिस दिन तुम्हारी फ्लाइट होती है, उस रात को वो जो मूवमेंट होता है वो वही बंदा डिफाइन कर सकता है, हु इज लिविंग देयर पेरेंट्स एंड होल कंट्री बिहाइंड। एक तो बंदा होता है कि दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहा है, तो अब उत्कर्ष है, उत्कर्ष मान लो बेंगलोर शिफ्ट हो गया एंड ही इज वर्किंग, तो अब उत्कर्ष को अब फैमिली से मिलने का मन है, वो आ सकता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बट अब मिनांक का है एक बंदा, अब वो दूसरी कंट्री में एंड अब उसका मन है, तो वो वापस आ नहीं सकता फैमिली के पास एकदम से। वीजा का प्रोसेस होता है, फ्लाइट टिकट होती है, और वो भी एक्सपेंसिव इतने ज्यादा होते हैं। आज के टाइम पे भी फ्लाइट्स बड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। तो ये सब देखना होता है, और विद दैट तुम्हारे पास टाइम भी होना चाहिए, तुम्हारा प्रोसेस ऑलरेडी चलता है। तो बस तुम्हें माइंडसेट ऐसा बनाना है कि जब तुम एक बार आ रहे हो तो तुम्हें अच्छे से यहाँ पे रहना है। और देखो ऑब्वियसली घर वालों की याद आएगी, दोस्तों की याद आएगी, होम टाउन की जो तुम्हारे सारे तुम चीजें करते थे, बट ठीक है उनको याद करो, उनको तुम कॉल कर सकते हो। आज के टाइम पे हमारे पास व्हाट्सएप है और वीडियो कॉलिंग है, सब कुछ है। पहले तो लोग आते थे, उन बेचारों के पास कुछ भी नहीं होता था उस टाइम पे। मेरे को लोग बताते हैं, ऐसे मैंने बात करी है कि वो महीने 2 महीने बात करते थे अपने घरों में। अब तो हमारे पास विद इन अ 1 click वी कैन टॉक टू आवर मदर एंड फादर एंड आवर लव्ड वंस। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। और मेन सारी बात यहाँ पे अगेन है माइंडसेट की। अगर तुम सोचोगे कि यार नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पाएगा, बट कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस अपना माइंड फोकस रखो। यहाँ पे मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, कुकिंग भी है, स्वीपिंग भी करनी है, घर भी साफ करना है, पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, स्टडीज भी करनी है, स्टडीज के साथ साथ असाइनमेंट्स भी करने हैं। तो तुम्हें ये सब कुछ एक सारी जो चीजें हैं इनका आराम से स्केड्यूल करना पड़ेगा, ताकि तुम अपना टाइम इनको दे पाओ अच्छे से। और मल्टीटास्किंग देखो एकदम से नहीं आती, मैं भी बहुत गंदा हूँ मल्टीटास्किंग में। कई बार मैं क्या करता हूँ कि मैं एक ही चीज पे फोकस करता रहता हूँ और मैं 4 चीजें छोड़ देता हूँ। बट धीरे धीरे विद टाइम यू डेवलप दी स्किल्स। और बस ये है कि ऐसे मान के चलो कि जिस दिन तुम यहाँ पे आ रहे हो, अब तुम ऐसे ओशन में कूद गए हो कि भाई जिसमें बस हार्ड वर्क करना है अभी। और ये नहीं है कि तुम बस हार्ड वर्क ही करते रहोगे, तुम्हें अच्छी वेज मिलेगी यहाँ पे, अच्छे तुम्हें मनी यहाँ पे है, बट ये भी है कि तुम खर्चा भी हिसाब से करोगे। बट एनी हाउ तुम इंडिपेंडेंट लिविंग पे आ जाओगे और तुम अपने डिसीजंस लोगे एंड यू आर गोना डेफिनेटली एंजॉय इट। हार्ड वर्क प्लस आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ। यस क्वालिटी ऑफ लाइफ है यहाँ पे, बहुत डिग्निटी है यहाँ पे, लोग वैल्यू करते हैं एक दूसरे की, और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है यहाँ पे। और मैं यूं नहीं कहता कि दूसरी कंट्री में गंदी है, ऐसा कुछ नहीं कि हम कंपैरिजन करें। तो हम कंपैरिजन करेंगे तो दो चीजें किसी में अच्छी होती है, 2 चीजें किसी में अच्छी नहीं होती। बस ये मेन है कि अगर तुम आते हो यहाँ पे तो तुम्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, तुम अच्छा हार्ड वर्क करो, तुम अच्छा हसल करो तो तुम्हें रिटर्न मिलेगा। और उसके साथ साथ बस ये कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलते जाओ, तो तुम अच्छा अपनी फैमिली को भी यहाँ पे सेटल कर सकते हो और यहाँ पे तुम अच्छे से रह सकते हो। ओके, सो अब पीआर के बारे में बात करते हैं। सो इज इट इजी टू गेट पीआर इन कनाडा? यस ऑब्वियसली। अब इसमें भी एक बहुत बड़ी चीज है कि मैंने बहुत लोगों को यहाँ पे देखा है, वो कहते हैं कि यार बस पीआर मिल जाए, हम तो पीआर के लिए आए हैं यहाँ पे। पीआर मिलने से मतलब पीआर कहने से तो मिलेगी नहीं।
क्योंकि अब पीआर कैसे एक पार्ट है एक प्रोसेस का। लाइक अब अगेन लाइक टेकिंग योर एग्जांपल, मान लो उत्कर्ष को अब इंडिया से कनाडा आना है तो उसका एक प्रोसेस है। ऐसे अगर तुम्हें कनाडा में पीआर लेनी है तो उसका भी एक प्रोसेस है। जैसे तुमने वीजा लगाया, तुम यहाँ पे पहुंच गए, तुमने सारी उसमें चीजें करी, अपने जीआईसी करी, एडमिशन लिया किसी कॉलेज में, आईएलटीएस दिया, ऐसे पीआर का भी प्रोसेस होता है। लाइक पीआर में वो तुम्हारी सारी चीजें देखते हैं, लाइक व्हाट्स योर वर्क एक्सपीरियंस, लाइक तुमने स्टडीज किस फील्ड में करी है, तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म किस फील्ड में तुम आगे करना चाहते हो, और लाइक योर पॉइंट सिस्टम। तो वो सारी प्रोफाइल एनालाइज करते हैं। एंड व्हेन यू क्लियर द पॉइंट सिस्टम, जितने भी उन पॉइंटर्स तुम्हें चाहिए टू गेट द पीआर, देन यू गेट इट इजीली। अगर तुम ऐसे सोचोगे कि नहीं यार ऐसे कर लूं, मैं वैसे कर लूं, या फिर मैं ऐसे पीआर मेरी लग जाए, मैं ये जुगाड़ कर लूं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि तुम बेसिकली जो तुम्हारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनको क्लियर करते रहो, तो तुम्हें आराम से पीआर लग जाएगी। लाइक टेकिंग माय एग्जांपल, मेरी अभी स्टडीज खत्म होने वाली है, लाइक इन लाइक वन मंथ और 2, तो उसके बाद व्हेन आई विल वर्क फॉर लाइक 12 मंथ्स, तो मेरे वर्क पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे इन अ नॉक बी जॉब। तो जो मेरे पॉइंट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। देन आई हैव टू गिव सेल्फ पेप और आईएलटीएस एग्जाम, ये भी देने होते हैं पीआर के टाइम पे, तो हमें दोबारा देने पड़ते हैं ये। लाइक वंस वी गिव इट इन आवर होम कंट्री, और फिर यहाँ पे आके फॉर आवर पीआर फाइल। तो तुम पीआर अपनी फाइल लगा दो, अगर तुम्हारा सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे मत सोचना कि यार पीआर के लिए कुछ अलग से करना पड़ता है, ये जस्ट प्रोसेस का पार्ट है, चलते जाओ, पीआर तुम्हारी लग जाएगी। बिकॉज कैनेडियन गवर्नमेंट एनी हाउ दे से एवरी डे that we need good resources in our country and Canada is all about immigrants। तो यहाँ पे सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, और अगर तुम भी सही पाथ पे चलोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐड करूंगा यहाँ पे कि नॉक लेवल जॉब्स क्या क्या है? जैसे नॉक लेवल जॉब्स में प्रोफेशनल जॉब्स आती हैं और मैनेजर लेवल की जॉब्स आती हैं, और फिर ये भी डिपेंड करता है कि अभी नीड किस चीज की है कंपनी में। तो गवर्नमेंट कई बार जॉब सेट भी करती हैं। अभी जैसे एक मार्केटिंग मैनेजर है तो ये नॉक लेवल जॉब्स हैं, या कोई लीड, जो कोई टीम का लीडर है जो किसी को मैनेज कर रहा है। यस 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 ठीक। सो इज कनाडा सेफ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? ओके, नाउ अगेन दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग कि ये बड़ा स्पेसिफिक हम ऐसे जनरलाइज बिल्कुल कर नहीं सकते, ये बड़ा स्पेसिफिक केसेस में है। लाइक टॉकिंग अबाउट कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज, आई थिंक इट्स रियली सेफ कि यहाँ पे क्राइम रेट फिर भी कम है, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं। अब मैं कहूँ कि कनाडा में तो कभी क्राइम होता ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। और ये है कि यहाँ पे क्राइम वैसे कम है, बस ये है कि अगर कोई किसी का दिन थोड़ा खराब है या फिर कुछ किसके साथ होना तो हो ही जाता है वो, तो ऐसा भी नहीं है। बट ओवरऑल इट इज सेफ। कि मैंने यहाँ पे ये नोट करा है कि लाइक व्हेन आई गो ऑन अ वॉक, चाहे मैं रात के 2 बजे भी जा रहा हूँ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एनी हाउ तुम्हें नहीं जाना चाहिए रात को इतना बाहर, अपना घर पे सेफ रहो। तो जितना हो सकता है सेफ्टी कंसर्न तुम्हारे हाथ में ही है। और अगर तुम्हें कहीं पे भी कुछ भी लगता है कि यार तुम्हारे को ऐसा थ्रेट कोई देख रहा है या तुम्हें कुछ भी फील हो रहा है ऐसा, तो 911 इज द नंबर, तुम हमेशा वो कॉल कर सकते हो। लाइक पुलिस विल कम, दे आर गोना एनीवे हेल्प यू हर केस में, तो वो तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा है। बट और हमेशा प्रे यही करो गॉड से कि यार तुम्हारे साथ कभी कुछ ना हो। और बट अगर गलती से भी कुछ हो जाता है तो जस्ट रिमेम्बर द नंबर 911, उसको मिलाओ, उनको अपनी सिचुएशन बताओ और तुम्हें वो रेस्क्यू करेंगे जो भी होगा। बट ओवरऑल अगेन इट्स अ सेफ कंट्री, या कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। आओ और अपने यहाँ पे तुम लाइफ बना सकते हो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्कैम्स इन कनाडा। सो जैसे सिन नंबर स्कैम होता है और भी काफी सारे स्कैम्स होते हैं, सो सब Okay. So talking about the SIN number, I would like to tell you viewers like what is SIN. तो SIN number एक ऐसा सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है जो जिससे तुम्हारा सारा कुछ, तुम्हारी हिस्ट्री निकल सकती है कि तुम कहाँ से मनी ले रही हो, एक्सचेंज कैसे कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब्स तुम्हारे कितना तुम्हारे डॉलर्स आ रहे हैं, कितना अमाउंट तुम आगे दे रहे हो। तो उससे गवर्नमेंट सब कुछ ट्रैक कर सकती है। और वो सोशल इंश्योरेंस नंबर तुम्हें किसी से भी शेयर नहीं करना, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल नंबर होता है और वो तुम्हें मिलता है सर्विस कनाडा से। ठीक है, तो तुम यहाँ पे आके सिन नंबर ले सकते हो और उसके भी आप पे फिर तुम काम कर सकते हो। तो वो नेसेसरी है लेने के लिए। अब नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कैम्स, अब जैसे वन ऑफ द स्कैम तुम्हारे साथ क्या हो सकता है कि यू विल गेट द SMS ऑन योर फोन और उस पे लिखा आएगा कि हाय वी हैव फाउंड दैट यू आर डूइंग इलीगल एक्टिविटीज इन कनाडा, सो क्लिक हियर। तो उस पे तुम क्लिक करोगे तो वो तुम्हें टैप कर लेंगे या तुम्हारा सिन नंबर मांगेंगे। अदरवाइज दूसरे तरह का स्कैम क्या होगा, तुम्हें वो कॉल करेंगे कि हम कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी से कॉल कर रहे हैं और हमने तुम्हें फाउंड करा है कि तुम लोग भाई गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो या तुम गलत तरीके से डॉलर्स ले रहे हो किसी से। तो वो तुम्हें डराते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, ऐसे कॉल किसी के पास भी नहीं आता।
नाउ अगेन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि पैनिक किसी भी चीज में मत होना, क्योंकि तुम अकेले होते हो, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं पैनिक होने के, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, और जो रूममेट्स फ्रेंड्स है वो भी अपने कामों पे है। मान लो इफ यू आर कमिंग बैक फ्रॉम योर होम और तुम्हारा कॉल आया ऐसे कि हम सर्विस एजेंसी से, गवर्नमेंट से कॉल कर रहे हो, तुम इसमें पाए गए हो, उस टाइम पे या तो तुम्हें पता लग जाएगा धीरे धीरे स्कैम नंबर से, तुम उठाओगे ही नहीं। अगर तुम आंसर कर भी लेते हो तो उनको बस आराम से बात करो और फोन काट दो। वैसे तो ऑटो जनरेटेड कंप्यूटर कॉल्स ही होते हैं। और पैनिक मत हो बिल्कुल भी, किसी अच्छे लॉयर से कंसल्ट करो और तुम्हें आइडिया लग ही जाता है कि ये स्कैम कॉल था। और यहाँ पे मेन बात ये भी है कि किसी भी एसएमएस में या किसी भी जगह पे ऐसे टैप मत करो, क्योंकि यहाँ पे स्कैम्स बहुत ज्यादा है। स्कैम्स के चक्कर में कई बार बेचारे बच्चे अपने जो उनकी हार्ड एंड मनी होती है ना, वो उनके हाथों से चली जाती है, उसमें बुरा बहुत लगता है। बट अगर तुम सेल्फ अवेयर रहोगे तो तुम्हारे साथ स्कैम नहीं हो पाएगा। तो इनके बारे में भी बहुत ज्यादा रिसर्च करो, जो भी बंदा आ रहा है यहाँ पे पूरी कंट्री के बारे में देख के आओ, और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय मंथ्स तुम्हें खुद ही सारा प्रोसेस पता लग जाएगा। तो नाउ दैट्स इट लाइक अबाउट द स्कैम्स पार्ट। Okay, so let's talk about universities और colleges. So best universities कौन कौन सी है, और इसमें मतलब कॉलेज अच्छी है, डिग्री के लिए कॉलेज अच्छी है या ओनली फॉर सर्टिफिकेट्स? ओके तो ये अब ये भी डिपेंड करता है कि लाइक चॉइसेस पे, लाइक इफ अ पर्सन इज कमिंग एंड उनको डिग्री करनी है, लाइक फॉर मी डिग्री इज एनी हाउ हायर देन अ डिप्लोमा ऑब्वियसली, क्योंकि डिग्री से क्या होता है कि वो 2 इयर्स की होती है तुम्हारी मिनिमम, और तुम्हारे को उस पर 3 इयर्स का वर्क परमिट मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स को लाइक बताना चाहूंगा कि ऑन अ 2 इयर्स कोर्स यू गेट अ 3 इयर्स वर्क परमिट एंड ऑन अ 1 ईयर कोर्स यू गेट अ 1 ईयर वर्क परमिट। ठीक है, तो जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स होते हैं वो होते हैं 1 साल के, और जो डिग्री होती है वो होती है 2 साल की। तो लोग क्या करते हैं, बैचलर्स में बैचलर्स होती है 3 इयर्स की और 4 इयर्स की। 4 इयर्स पे कितना वर्क परमिट मिलता है? उस पे भी 3 इयर्स का ही मिलता है। अच्छा, उस पे भी 3 इयर्स का ही मिलता है, और उसके बाद तुम अपना प्रोसेस आगे तुम एक्सटेंड करा सकते हो बैचलर्स के बाद भी, जो वर्क परमिट तुम्हारा होता है पूरा, और तुम एक पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो तुम उसमें। नाउ कमिंग अगेन बैक टू लाइक डिप्लोमा एंड डिग्री, तो डिग्री एनीहाउ हमेशा अच्छी है, अच्छी यूनिवर्सिटी से, लाइक अच्छी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, ये सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। और मैं अभी यॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। लाइक यू विल गोना लाइक द कल्चर, द टीचर्स, तुम्हें डिफरेंस पता लगेगा एजुकेशन में, और यहाँ पे कैसे कल्चर होता है, कैसे क्लास में डिस्कशंस होती हैं, तो ये चीज़ें सारी अच्छी हैं। बस अब डिप्लोमा किस लिए करते हैं लोग, क्योंकि डिप्लोमा होता है तुम्हारा 1 ईयर का, और 1 ईयर की फीस होती है कम, क्योंकि मनी इज द मेन फैक्टर। तुम्हें फाइनेंसेस भी मैनेज करने हैं, वो देखने हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि पहले मैं 1 ईयर का कोर्स करके देख लेता हूँ, अगर मेरे को मेरी जॉब मिल गई तो यार मैं फिर सीधा पीआर के लिए ट्राई करूंगा, जॉब करूंगा। और मान लो कि नहीं मिलती जॉब, तो तुम क्या कर सकते हो, 1 ईयर का तुमने डिप्लोमा करा, तो सेकेंड ईयर भी डिप्लोमा ले लो, तो तुमने 2 डिप्लोमा कर लिए, उससे तुम्हारे को 3 ईयर का वर्क परमिट मिल जाएगा। और दूसरा बंदे है कि जो पहले ही एक डिग्री कर रहा है, उसको 2 साल की डिग्री है उसकी, उसको भी 3 ईयर का मिलेगा। तो ये तुम्हारी चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि तुम्हें, अब जो डिप्लोमास होते हैं वो स्पेशलाइजेशन पे होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये सारे एक स्पेसिफिक टारगेट करते हैं एक नीश को ना, एक जॉब को, ताकि तुम्हारे को उसमें जॉब मिल जाए। और ये बहुत फास्ट पेस्ड कोर्स होते हैं, लाइक इन 8 मंथ्स यू हैव टू गो थ्रू 12 कोर्सेज एटलीस्ट, और 8 to 12 कोर्सेज तुम्हें वो करने होते हैं, और तुम्हें 8 मंथ्स में ही कराए जाते हैं वो। लाइक 2 सेमेस्टर्स होते हैं विद अ स्टडी वीक यहाँ पे कहते हैं ब्रेक को, तुम्हारे 2 सेमेस्टर्स के बीच में होता है जैसे वो, और एक स्टडी वीक होता है तुम्हारे सेमेस्टर्स के मिड में, तो लाइक तुम्हें ब्रेक मिलते हैं और तुम्हारा उसमें सारे सब्जेक्ट चलते हैं। और जो डिग्री होती है, डिग्री में सेमेस्टर्स भी ऐसे बटे होते हैं, लाइक कई बार तुम्हें एक जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसमें 4 मंथ्स का तुम ब्रेक ले सकते हो। तो दोनों का पैटर्न अलग अलग है, बस ये है कि तुम्हें कंपेयर करना है कि तुम्हारे लिए कौन सा अच्छा कोर्स है। अगर तुम्हारे को डिग्री अच्छी मिल रही है और तुम फाइनेंसेस मैनेज कर पा रहे हो, तो फॉर श्योर जाओ उसके लिए, और यूनिवर्सिटी में तुम अप्लाई करो, और कॉलेजेस में भी अप्लाई कर दो फॉर बैकअप। और अपनी रिसर्च करने के बाद ऑब्वियसली यू कैन मीट अ गुड कंसल्टेंट, तुम्हें वो अच्छे से गाइड करेंगे। ओके, सो मैंने ये भी मैं जब देख रहा था तो मैंने देखा था कि बहुत सारे कॉलेजेस भी अब डिग्री ऑफर कर रहे हैं। यस कॉलेजेस पे डिग्री ऑफर करते हैं। इनका क्या होता है कि टाई अप होता है, लाइक जॉर्जन कॉलेज है, उसका भी मेरे को एक यूनिवर्सिटी है, लाइक आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई विल जस्ट लाइक राइट इट इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने शेरिडन का देखा था, उसका पाइलन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ। यस इनके टाई अप्स होती हैं कि क्या कर सकते हो तुम यहाँ पे ना, क्रेडिट्स ट्रांसफर हो जाते हैं।
लाइक फॉर एन इंस्टेंस, अगर तुम एक कोर्स कर रहे हो डिजिटल एंड कंटेंट मार्केटिंग फ्रॉम योर्क यूनिवर्सिटी, तो तुम्हारा उसमें सब्जेक्ट है जैसे मान लो सोशल मीडिया क्रिएशन। और अगर तुम्हें दूसरा कोर्स अब करना है पब्लिक रिलेशंस, उसमें भी एक सब्जेक्ट सोशल मीडिया क्रिएशन है। अब तुम एनी हाउ वो कर चुके हो पहले ही, राइट? तो तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे वो क्रेडिट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। और पर सब्जेक्ट आई थिंक यू नीड टू पे $1900 कुछ होते हैं, तो तुम्हारे वो माइनस हो जाते हैं फ्रॉम योर फी। तो तुम्हें वो भरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनी हाउ यू लाइक तुम्हें क्रेडिट मिल चुका है उसका, तो ऐसे क्रेडिट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। और ऐसे ही लोग क्या करते हैं कि डिप्लोमा को भी वो डिग्री में कन्वर्ट करा लेते हैं फ्रॉम कॉलेज टू यूनिवर्सिटी। और कई के कॉलेजेस इसमें तुम्हारी हेल्प करते हैं। तो हमेशा अपने कॉलेजेस को तुम एडमिन डिपार्टमेंट को, रजिस्ट्रार को मेल करते रहो। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है यहाँ पे, मैंने देखा है कि हम सोचते हैं कि हमारी मेल्स को कोई रिप्लाई नहीं करेगा, या फिर हम कॉल्स करेंगे रिप्लाई नहीं करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। बस हम अप्रोच ही नहीं करते। अगर हम अप्रोच नहीं करेंगे तो किसी को हमारा मैसेज जाएगा ही नहीं। अगर तुम सेंड नहीं करोगे तो रिसीव कैसे होगा? तो एटलीस्ट अपने पार्ट पे तुम मैसेज का सेंड कर दो। एंड मैं कह रहा हूँ 99 आउट ऑफ 100 चांसेस है कि भाई तुम्हारे को रिप्लाई आएगा, और वो तुम्हें अच्छे से गाइड करेंगे हर चीज। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि तुम मेल करोगे तुम्हारे को मेल का रिप्लाई बैक आया ही नहीं। चाहे मैं कह रहा हूँ प्रोफेसर हो, तुम जानते भी नहीं हो, उससे रजिस्ट्रार है, या तुम्हें तुम्हारी कोई भी क्वेरी है, तुम उसको भाई बेझिझक पूछो, क्योंकि उसके बाद ही क्लियर होगा कि तुम्हारे लिए राइट पाथ कौन सा है। अपने आप डिसीजंस मत लो, रिसर्च करने के बाद लो, फिर जो मन कहता है और फैमिली से डिस्कस करो, उसके अकॉर्डिंग ही चलो। Okay. So what do you think differentiates the Canada apart from India in terms of education? Like in terms of education, इंडिया और कनाडा में जो सबसे मेन डिफरेंस एक तो जो मेरे को लगा, दैट इज एकेडमिक इंटीग्रिटी। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर व्हाट इज एकेडमिक इंटीग्रिटी। कि यहाँ पे ना बड़ा इसका ध्यान दिया जाता है कि तुमने किसी से कुछ कॉपी तो नहीं किया हुआ। जैसे एनीहाउ इंडिया में हम लोग कर लेते हैं कि अपने असाइनमेंट्स वगैरह बस थोड़े बहुत चेंज करे, नाम लिखा। कई लोग तो ऐसे करते कि नाम भी चेंज नहीं करते थे, बस दे दिया, इतनी जल्दी में होते थे। या फिर थोड़े बहुत जो बेचारे दिमाग लगाते थे, नाम चेंज करा और चल भाई असाइनमेंट सबमिट। और टीचर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं कहते थे। ऐसे नहीं कह रहा कि मैं इंडिया में सारे ऐसे ही करते हैं, बट यहाँ पे जो फर्क है ना, यहाँ पे प्लेजरिज्म एक बहुत ही बड़ी चीज है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने जैसे मान लो सब्जेक्ट है मेरा डिजिटल मार्केटिंग, मेरा सब्जेक्ट है, उसमें मेरे को एक असाइनमेंट मिला। अब वो असाइनमेंट को मेरे को मान लो एक ब्लॉग लिखना है, लाइक व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन 2050 फॉर एन एग्जांपल। अब मैंने यही सर्च करा और मैंने नेट से ही कोई ब्लॉग है, मैंने सेम का सेम लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, तो उसी दिन ही मेरे को 0 मिल जाएंगे उसी असाइनमेंट में। और टीचर का मेरे पास मेल आ जाएगा कि यू हैव बीन फाउंड, लाइक कि तुम इंटीग्रिटी एकेडमिक इंटीग्रिटी को ब्रीच कर रहे हो और तुम्हारे को इसमें कोई भी नहीं मिलेगा। और कुछ कॉलेजेस में तो इतने स्ट्रिक्ट होता है कि पूरा ही तुम्हारे को कोर्स में फेल कर देते हैं अगर 2 या 3 बार से ज्यादा लगे। तो तुम्हें प्लेजरिज्म का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और ये बहुत अच्छी चीज भी है कि तुम्हें खुद का ही लिखना है, खुद का रिसर्च कर सकते। यस, खुद के जो तुम्हारे पॉइंट्स है, जो तुम्हें फील होता है उसके बारे में। क्योंकि टीचर्स क्या कहते हैं कि तुम गलत लिख दो, वो कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें करेक्ट कर देंगे, बट तुम्हें किसी का कॉपी करके नहीं लिखना, वो उसका आइडिया तुम अपना नहीं बना सकते। प्लेजरिज्म का यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है कि तुम किसी का कॉपी नहीं कर सकते। और जो मैंने दूसरी चीज यहाँ पे फील करी है, यहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस बहुत हैं। यहाँ पे कोई भी अगर स्टूडेंट आएगा उसको ग्रुप असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे। ग्रुप असाइनमेंट्स में क्या एक बंदे को अलग फील होता है कि अच्छा लगता है। इंडिविजुअल में तो तुमने अपना काम करा, सबमिट कर दिया। ग्रुप असाइनमेंट्स में कितनी सारी चीजें आती हैं। अब 5 बंदों का ग्रुप है, एक बंदे को लीडरशिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि लीडर तो होना ही चाहिए ग्रुप का, नहीं तो ग्रुप किसी बात पे जा नहीं पाएगा। एक बंदा लीडरशिप लेता है, एक बंदा कोऑर्डिनेशन करता है, एक बंदा शेड्यूल देखता है कि यार सारी चीजें काम के हिसाब से हो पा रही है नहीं, एक बंदा डेडलाइन को मॉनिटर करता है कि उस दिन तक हो जाएगी या नहीं। फिर अब लास्ट में एक बंदा सारी चीजें कंपाइल करता है। तो एक पूरा तुम प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हो, तुम्हारी से स्किल्स बहुत डेवलप होती है। चाहे जिस दिन ग्रुप बनता है, एक बंदा ऐसा होता है जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाता है, जो इनिशिएटिव लेता है। तो ये ग्रुप असाइनमेंट्स भी मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं। और जो टीचर्स की बात है, यहाँ पे मैंने ये चीज देखी कि तुम्हें कोई जज नहीं करेगा टीचर। मान लो तुम कोई छोटा सा भी क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, कोई भी लाफ ऐसे कोई हंसेगा नहीं कि तुम्हारे को ये नहीं आता वो नहीं आता, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। सब यहाँ पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और सब बड़े अच्छे से बात करेंगे तुम्हारे से। अब ऐसे भी नहीं कि सब कुछ ही बिल्कुल अच्छा हो रहा है, जैसे भी मैं बता रहा हूँ, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, बट जो मेजोरिटी फैक्टर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो तुम्हें अच्छा फील होगा। बस ये है कि तुम अगर अगेन लाइक हर चीज का एक ये होती है मेन चीज कि अगर तुम खुद अच्छे हो तो तुम्हारे साथ भी चीजें अच्छी होगी। कर्मा भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये सारे मेरे को बड़े मतलब डिफरेंसेस लगे इंडिया से। और जब तुम लोग आओगे, तुम यहाँ पे परस्यू करोगे एजुकेशन, तो आई थिंक यू विल फील द सेम एज वेल।
Yeah. So you have worked in both Canada and India. So therefore, I'm curious about the differences between working in India and working in Canada, specifically in terms of work culture, work environment, total working hours, and everything else. How different was it for you? ओके ओके, तो जो मेजर डिफरेंस मेरे लिए इंडिया और यहाँ पे भी वर्क करने पे है, क्योंकि इंडिया में मैं वर्क कर रहा था फुल टाइम, तो मेरे एक फिक्स पैकेज था. लाइक आई यूज्ड टू गेट माय सैलरी इन 30 डेज, जो मंथली सैलरी होती थी. यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पार्ट टाइम, तो पार्ट टाइम में क्या होता है, यू गेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेज अकॉर्डिंग टू द आवर्स यू हैव वर्क. मतलब हर एक आवर का तुम्हें पैसा मिलता है यहाँ पे, ठीक है. तो फिर एक तो ये फर्क है. और यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस इंडिया और कनाडा में ये भी है कि इंडिया में यू गेट पेड मंथली, बट कनाडा में यू गेट पेड बाई वीकली. तो यहाँ पे बाई वीकली बेसिस पे पेमेंट आती है, ताकि यहाँ पे इसलिए ऐसा कर रखा है क्योंकि यहाँ पे बिल्स बहुत रनिंग होते हैं. लाइक तुम्हारे फोन का बिल है, कार का बिल है, रेंट बिल है, इंश्योरेंस है, सब कुछ है. तो यहाँ पे क्या होता है कि रनिंग मनी है कि तुम्हारा बाई वीकली बिल आया, तुमने पे करा, बाई वीकली तुम्हारी पेमेंट है, तुमने मंथली पे करा. तो ऐसे चलता रहता है. एक तो ये डिफरेंस है. वर्क कल्चर में डिफरेंस ये है कि इंडिया में सारे इंडियंस ही होते हैं ज्यादातर, अगर आपने देखा हो तो. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स ज्यादा है, तो अब एक ही ऑफिस में एक बंदा अमेरिका का हो सकता है, पाकिस्तान का हो सकता है, इंडिया का हो सकता है, बांग्लादेश का हो सकता है, थाईलैंड, वियतनाम, मतलब अलग अलग कम्युनिटीज के लोग इकट्ठे रहते हैं. एक तो वर्क कल्चर सबसे बड़ा ये है यहाँ पे. तो हर बंदा हर किसी की रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि अब जो उसका कल्चर है वो अलग है, जो मेरा कल्चर है वो अलग है. तो अगर तुम किसी पे ऐसे हंसोगे उसके कल्चर पे, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग. तो सबसे पहले तो हर एक कल्चर की यहाँ पे तुम्हें रिस्पेक्ट करनी आ जाती है, क्योंकि उसके रहने का, उसका लंच करने का तरीका, लाइक द वे दे वर्क, वो सब कुछ अलग है. लाइक तो तुम्हें उस डिग्निटी में रहना होता है, और यही सब ही फर्क है. और मैंने एक ये भी चीज देखी है यहाँ पे इंडिया और कनाडा से अलग, कि यहाँ पे वर्किंग आवर्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं और तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. लाइक इफ यू नीड अ हॉलीडे फॉर समथिंग, तुम्हें मतलब कि तुम्हारा कोई प्लान है, तो तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि क्यों, इसलिए, ये वो. यहाँ पे एक कल्चर है कि तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है. अब हमारी कम्युनिटी हम क्या सोचते हैं, जैसे हम साउथ एशियंस, कि यार अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए तो वी आर बीइंग रूड, बट ये रूड नहीं होता यहाँ पे. यहाँ पे ये है कि किसी के पास जरा टाइम नहीं है, टाइम की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है. तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बंदा अपनी बात बोलता है, और दूसरा बंदा उसको रूट तरीके से नहीं लेता. फॉर एग्जांपल, मान लो उत्कर्ष को पार्टी में जाना है, और उत्कर्ष को हाफ एन आवर पहले ही, मान लो आपको अर्जेंट काम आ गया, तब आपको अपने फ्रेंड को कॉल करोगे. अगर इंडिया में होगा तो आप कहोगे कि यार ये हो गया, ऐसे हो गया, मैं आ जाता, अब क्या करूँ, शायद देखता हूँ. बट यहाँ पे कल्चर है, बंदा कहते हैं आई एम रियली सॉरी, आई गॉट सम वर्क, so we'll meet tomorrow or anyhow like any other day. तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कल्चर है, और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि सब अपने में और सब समझती भी है ये चीज. So this is like the major difference. So what is the minimum wage in Ontario? So the minimum wage in Ontario is $15 for an hour. Yeah. Okay. And a student can work 20 hours in a week legally. और उसके बाद अगर if you are working in your college or university, for an example, जैसे योर्क यूनिवर्सिटी में मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि योर्क लेन से एक जगह है, वहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं, तो मेरी फ्रेंड्स वहाँ पे काम करती हैं. तो वो लोगों के आवर्स काउंट नहीं होते, बिकॉज वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रीमाइसिस में ही वर्क कर रहे हैं. तो ये गवर्नमेंट का रूल है. अदरवाइज जैसे मैं काम करता हूँ, मैं 20 आवर्स काम करता हूँ वीक में, तो मेरे को बाई वीकली सैलरी मिल जाती है 40 आवर्स की, क्योंकि 2 वीक्स में मेरे 40 आवर्स हो जाते हैं, और मंथली सैलरी जो तुम्हारे 80 आवर्स तुम लगा सकते हो. Okay. Yeah. So what advice would you offer to someone who is considering moving to Canada? Like the someone who is moving to Canada, बस एक चीज दिमाग में लेके रखना कि स्ट्रगल वर्ड तो निकाल देना, और बस ये सोचना कि यार हार्ड वर्क तुम्हें करना पड़ेगा. हार्ड वर्क तो देखो चाहे कोई भी कंट्री हो, तुम्हें एनी हाउ करना पड़ेगा, बट जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो तो into 3 into 4 करना पड़ेगा तुम्हें हार्ड वर्क उस चीज का. तो सबसे पहले ये माइंड के सेट के साथ आना कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा मत लेके आना. मैंने देखा लोग इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेते हैं, वो सोचते हैं कि यार अब हम बाहर जा रहे हैं, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, और हम तो पता नहीं अब क्या ही हो जाएंगे. और लोग यहाँ पे आके फिर अपनी होम कंट्री को भी मैंने देखा है कि ऐसे बुरा बोलते हैं, बल्कि उनको ये सोचना चाहिए कि उसी होम कंट्री से वो लोग वहाँ पे मतलब कि उनका बेस बना है, और यहाँ पे आके तभी वो आ पाए हैं यहाँ पे. तो एक तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा लेके मत चलो कि अब मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा. कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं होता. बस ये है कि तुम्हें हार्ड वर्क और ज्यादा करना है. यहाँ पे तुम्हारे जो भी तुम्हारी चीजें हैं, जो तुम्हारे शौक है, तुम वो पूरे कर सकते हो आराम से. लाइक अगर किसी को अच्छा, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल कि अच्छा फोन लेना है या कार लेनी है, वो तुम कर सकते हो, बट वो भी फाइनेंसिस के हिसाब से करो. ऐसे मत करो, किसी के दिखावे के लिए मत करो. अगर तुम्हारे को नीड है उस चीज की तो लो,
अगर तुम्हारे को लगता है कि यार तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा तो फिर उसको लो। ऐसे मत लो कि तुम्हें किसी अपने फ्रेंड को इंडिया में दिखाना है, यहाँ पे ये भी कल्चर कर लेते हैं लोग, कि लोग स्टूडेंट्स ना, और फिर वो अपने एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर पाते। तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत लेके आओ, बस अपना नॉर्मल रहो। वैसे सोचो कि यार मैं एक जगह ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मेरे बस फैमिली नहीं है, मेरे को वहाँ पे अब नई लाइफ बनानी है। क्योंकि अगर तुम ऐसी जगह पे आ रहे हो जहाँ पे तुम्हारे कोई भी नहीं है, तुम्हें वहां से अब स्टार्ट करना है बिल्कुल बेसिक से। तो मतलब मैं कई बार अपने दोस्तों में बोलता हूँ कि ये एज इन दूसरा बर्थ है ये तुम्हारा। क्योंकि यार वो चीजें तुम्हारी ऐसे ना, उस फ्लाइट के बाद वो एक जो लाइफ का पार्ट होता है वो अलग हो जाता है, और ये सेकंड फेज चालू हो जाता है यहाँ से। तो ये सेकंड फेज में अब तुम ही यहाँ पे मेन हीरो हो अपनी लाइफ के अब, क्योंकि तुम ही अब सब कुछ डिसाइड करोगे कि तुम्हें अब कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसी जॉब करनी है, डिसीजन तो तुम्हें खुद लेने हैं। और धीरे धीरे तुम फिर सीखते रहते हो अपनी गलतियों से। अपनी गलतियों से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और गलती मानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सोचो कि नहीं यार ये तो ऐसे था वैसे था, बहाने तो 1000 लगा सकते हैं हम, बट गलती करके उससे सीखना इज द बिगेस्ट थिंग। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है ये, मैं सारे अपने गेस्ट से पूछता हूँ। सो इन योर ओपिनियन व्हाट इज सक्सेस? ओके, अब ये अगेन थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि सक्सेस सबके लिए अलग है। मतलब सक्सेस और सक्सेस ऐसी चीज है कि ये टाइम के साथ चेंज होती है। क्योंकि अब फॉर एन एग्जांपल मान लो एक इंडिया में बैठा स्टूडेंट, उसके लिए सक्सेस है भी कनाडा पहुंचना। कनाडा में बैठा स्टूडेंट, उसके लिए सक्सेस है वर्क लाइफ में आना, कि यार मेरे को अच्छी जॉब मिल जाए। अब जब वर्क कर रहा है उसके लिए सक्सेस है कि मेरे को पीआर मिल जाए, और पीआर वाले के लिए सक्सेस है कि मेरे को सिटीजनशिप मिल जाए। सिटीजनशिप वाला सोचता है कि यार मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैं 40s में अपने रिटायर हो जाऊं और अपना जिंदगी जीऊं, कंट्रीज घूमूं। तो सक्सेस एक ऐसी चीज है सबके लिए अलग है। बट फॉर मी सक्सेस इज जो तुम्हें खुश रखे, जो तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे लिए प्राउड फील कराए। लाइक द डे लाइक यू विल फील दैट कि हाँ यार मेरे माँ बाप खुश है मेरे से इससे। तो सक्सेस को ऐसे लेकर चलो कि शॉर्ट टर्म गोल्स बना लो सक्सेस के, कि यार मैं अच्छा काम करूंगा ये तो मेरे मम्मी पापा खुश होंगे, मैं मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो तुम्हारे को सक्सेस मिलती रहेगी। और जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है वो इन्हीं छोटे छोटे, जब तुम उनको स्टेप्स में बांट लोगे ना, तो वो लॉन्ग टर्म सक्सेस के बहुत ज्यादा चांसेस है तुम अचीव कर ही लोगे। तो बस यही चीज है कि तुम ना लगे रहो। अगर तुम कुछ बड़ा सोचोगे तो ही बड़ा होगा। और बस एक दिमाग से हम सबको ये बात निकालनी पड़ेगी कि यार नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं तो कर ही नहीं सकता। क्योंकि यार अगर तुम ऐसे सोचोगे ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब मैंने भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करा था तो मैं भी सोचता था पता नहीं कैसे करूंगा, मेरे दोस्त कैसे रिएक्ट करेंगे मैं कैमरे के आगे। हर कोई शाय फील करता है, अपनी आवाज को सुनकर ऐसा लगता है कि यार मेरी आवाज इतनी बुरी है, या फिर दिस इज हाउ आई लुक लाइक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। बट धीरे धीरे एवरीथिंग गेट्स नॉर्मल। एंड जो लोग तुम्हें बोलते हैं कि तू यार ये क्या ही कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, और फिर एक दिन आता है कि वही लोग तुम्हें प्रेस करना चालू कर देते हैं कि हाँ यार वैसे तेरा कंटेंट अच्छा है, या फिर ऐसा है वैसा है। और ये हर किसी के साथ होता है, चाहे वो कोई जॉब में कर रहा है, पहले वही लोग तुम्हें गालियां देंगे, वही लोग तुम्हें ऐसे बुरा भला बोलेंगे। पर जो इसमें मेन बंदा वही होता है जो अपने, जिन लोगों से गालियां मिल रही है ना, जिन लोगों से हेटर से पता लग रहा है अपनी गलतियों को, उनको सुधारना ही मेन चीज है। मैंने कोटेशन भी पढ़ी थी कहीं पे कि अगर तुम्हारे आसपास हेटर्स है ना तो उससे बेस्ट चीज कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हें फ्री में फीडबैक मिल रहा है। अगर तुम उस फीडबैक को लेके बैठ जाओगे कि नहीं यार ये तो ऐसे बोल रहा है मैं तो नहीं कर पाऊंगा, एक ऑप्शन तो ये होता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सही कह रहा है। दूसरा ऑप्शन ये होता है अच्छा ये फीडबैक दे रहा है इसको ठीक करता हूँ, चाहे वो हेटर है तुम्हारा, बट तुम नहीं उसको पॉजिटिव साइड में ले रहे हो, और तुम धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे और तुम्हें रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा उस चीज का। तो तुम्हें रियलाइज होगा कि कैसे यार सब कुछ चेंज हो गया। बस ये है कि लगे रहो। अगर तुम कंटिन्यूअसली किस चीज के लिए लगे रहोगे ना, तो वो डायलॉग कहते हैं ना कि कायनात पे उसको मिलाने की पूरी साजिश रच लेती है, तो वो सीरियसली होता है। तो इट्स जस्ट दैट कि अगर उत्कर्ष पराशर शो है आज और वो भी चलता जाएगा, किसको क्या पता वो 2 साल बाद, 2 महीने बाद, चाहे 4 साल बाद, क्या पता इंडिया का बिगेस्ट शो बन जाए, कुछ नहीं पता होता। तो इट्स जस्ट दैट कि तुम अपनी तरफ से मेहनत ही कर सकते हो, और रिजल्ट्स को तुम मेजर करते रहो कि कितनी जल्दी आ सकते हैं और कैसे क्या तुम इम्प्रूव कर सकते हो विद जो तुम्हारा फीडबैक आ रहा है हेटर से, तो वो बेस्ट है। बस Impossible says I'm possible. Yeah, absolutely. So it's time to end up this podcast. Thank you very much, sir, for your valuable time. And thanks for listening. If you enjoyed this episode, you would like to help support the podcast, please share it with others, post about it on social media, or leave a rating and review. To catch all the latest from me, you can follow me on Instagram _Utkarsh Parashar, and also follow sir on Instagram @Menank Vlogs. And thanks again, and I'll see you next time. Thank you. Thank you, Utkarsh.